खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद खुदाए का दोस्त कि हम दो सना We give thank you, the Almighty God. We give thank you, the Lord Jesus Christ is here. हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। Lord Jesus Christ is here. Heavenly Father is here. Holy Spirit is here. जब यीशु यहाँ पे मौजूद है तो रूह कुद्दस यहाँ पे मौजूद है और खुदाए कद्दूस भी यहाँ पे मौजूद है। And the gift big hand for Lord Jesus Christ, Heavenly Father, and the Holy Spirit. Hallelujah. और तालियां खुदावंद यीशु के लिए और साथ के लिए खुदा We give thank you for precious gift of life. God give you the wonderful and the beautiful life. और खुदावंद की तारीफ करते हैं उसके खूबसूरत और अच्छे तोहफा के लिए। Your life is a precious gift of life, gift of और God. आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ही बेशुमार तोहफा है खुदा की तरफ से। And we are celebrating the new day, new month, and the new year in Jesus Christ. हम यीशु मसीह में नए साल को नई जिंदगी को मना रहे हैं। Hallelujah. And it will be the new thing from God for us. In this month, in this year, we believe God will give a very beautiful and the new things in our life. इस साल हम अपनी जिंदगी में बहुत सी नई चीजें देखेंगे और बहुत सी नई चीजें को हासिल करेंगे। Just we need to change our thinking level. सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है। Hallelujah. So that we come back upon my topic. Our topic is a live fish against the water and the dead with water. हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने मजमून की तरफ आते हैं कि जिंदा मछली जो है वो बहते पानी के मुखालिफ चलती है और जो मुर्दा मछली है वो बहते हुए पानी के साथ बह जाती है। Okay, before continue our topic, first of all we read from the Bible, the book of Proverbs, chapter number 29, the verse number 18. इससे पहले कि हम अपने मजमून को शुरू करें, हम एक हवाला देखते हैं किताब मुकद्दस में से। देखें इमसाल की मुकद्दस किताब, उसका 29वां बाब 18वीं आयत मुकद्दसा। इमसाल 29:18। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के लिए खुदा का शुक्र। Hallelujah. So that my dear brother and sister, I tell you our topic, the living fish against the water and the dead fish with the water. मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जो जिंदा मछली है वो पानी के मुखालिफ चलती है और जो मुर्दा मछली है वो पानी के बहाव में बह जाती है। First of all, we will understanding what is the meaning of the living fish, because the living fish against the water, and what is the meaning of the dead fish, because the dead fish work with the water. मेरे अजीजों, हम पहले देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ये क्या माजरा है कि जिंदा मछली जो है वो पानी के मुखालिफ जाती है और जो मुर्दा मछली है पानी के साथ बह जाती है। These are two category of personalities in this topic. इस मजमून में दो तरह की शख्सियतें हमें नजर आती हैं। The one category is full of vision. That category have a vision in his mind. मेरे अजीजों, जो पहली शख्सियत है, जो पहली किस्म है शख्सियत की,
वो रोया के साथ है। And the second category without fear. और दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी जो किस्म है, वो बगैर रोया के है। It's mean the dead fish, the qualities of dead fish and some qualities of a living fish. और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोगों में खुसूसियात पाई जाती हैं जिंदा मछली की, और कुछ लोगों में खसूसियात पाई जाती हैं मुर्दा मछली की तरह। So that, my dear brothers and sisters, first of all, I will tell you the qualities of living mind, the qualities of the living fish, the qualities of a living person, some qualities. मेरे अजीजों, पहले हम ये देखते हैं कि जो जिंदा मछली है उसकी क्या खसूसियात हैं, जो जिंदा मछली है उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या अहमियत है। The first quality is the mindset to doing something. The first quality of a living fish and the first quality of the living personality to doing something and growth, you can be say on the other hand. और मेरे अजीजों, पहली जो खसूसियत है वो है नशो नुमा की, के जो जिंदा मछली है उसमें नशो नुमा की खसूसियत पाई जाती है, आगे बढ़ने की खसूसियत पाई जाती है। Same as the some person have a qualities of doing something in their life. The some persons are in this world also. और इसी तरह जो जिंदा लोग हैं, जिंदा मछली की तरह के लोग हैं, उनमें कुछ कर गुजरने की खसूसियात मौजूद होती हैं। उनकी कुछ अपने अंदर उनमें जज्बा होता है कि वो कुछ ना कुछ दुनिया में कर गुजरें। They have the specific goals, they have a specific target in their life. उनका एक नुक्ता होता है, उनका एक टारगेट होता है जिसकी तरफ वो बढ़ते जाते हैं। The some people have not goals, some people have not targets, some people have not vision in their life. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ टारगेट नहीं होता, जिनके पास कुछ रोया नहीं होती, जिनको कहीं बढ़ने की सलाहियत नहीं होती। The many people have set their goals in 2024 and they will also work on them in 2025, and the some people in their life have not goal, not vision, not anything in their life. मेरे अजीजों, कुछ लोगों ने 2024 में एक मंसूबा बना लिया है 2025 के लिए, और वो उस पर अमल पैरा हो चुके हैं, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने हदाफ को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे 2025 में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास तो हदाफ ही नहीं है, जिनके पास हदाफ है ही नहीं, वो हासिल क्या करेंगे, वो तो मुर्दा मछली की तरह। You have a beautiful day, okay? You have a good family, good relationship, but how many people are sitting here? If I have a question, how many people have a goal in their life? और मेरे अजीजों, आपके बहुत से रिश्तेदार हैं, आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, आपके दोस्त हैं, और उनमें से कौन से लोग हैं जो कोई गोल रखते हैं, जिनके पास कोई रोया है, और कौन से हैं जिनके पास कोई रोया नहीं है। The mostly people, the 97% people in this world like that dead fish. It means they have not goals in their life. If you have not goal, what you will achieve? मेरे अजीजों, 97% जो तहकीकात की गई है, जो हासिल हुआ है तहकीकात से, इससे मालूम हुआ है कि 97% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ गोल नहीं है, उनकी सोच मुर्दा मछली की तरह है, उनके पास कुछ रोया ही नहीं है।
They are just like a dead fish in a water, dead fish in a pond. For example, the wind blow this side, the dead fish will move this side. Wind blow this side, this fish move this side. It's mean the circle and the moving in one round, one circle. मेरे अजीजों, वो लोग ऐसे लोग इस तरह से हैं जैसे कि मुर्दा मछली जो है उसका दारोमदार पानी के बहाव पे है कि पानी का बहाव इस तरफ को बहता है पानी तो वो इस तरफ को चली जाती है, पानी इस तरफ को बह जाता है तो जो मछली है वो उस तरफ को मुर्दा मछली बह जाती है, यानी उनकी अपनी कुछ कारकर्दगी नहीं है। Okay, so that my dear brothers and sisters, you are the people of God. You are the people of God. You are the church of Jesus Christ. मेरे अजीजों, आप यीशु के लोग हो। Okay, आप मसीह खुदावंद के पैरोकार हो। but the Bible says in this word, where there is no vision, the people perish. It's mean without vision, people will be destroyed. मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जैसा कि हमें बताती है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। My dear brothers, I tell you the little example from the Bible. बाइबल मुकद्दस में से हम एक मिसाल को देखते हैं। There was a one rich man, एक अमीर आदमी है and he has a 3 servants. और उसके 3 नौकर हैं। So that in these examples you will see the mindset of the people. इस जो मिसाल है, इस मिसाल में हम लोगों के ज़हनों को देखते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं। The some people have a personally desire of growth. और कुछ लोगों में ज़ाती जो खुसूसियत होती है आगे बढ़ने की। The some people are depend upon another. और कुछ लोगों की खुसूसियत होती है कम आगे बढ़ने की। Okay, so that there was a person, he was a very rich man. और ये 3 शख्स हैं जो कि इस अमीर आदमी के ज़ेरे असर हैं। The first servant, he gave the 5 talents. It means the 5 talents, something you can be said. और एक शख्स उनमें से, उन तीनों में से एक को 5 तोड़े उसका मालिक देता है। And the second received the 2. और दूसरे को 2 तोड़े उसकी अहलियत के मुताबिक उसको It मिलते हैं। means that every single person have a qualities. और इसका मतलब ये है कि हर किसी में अहलियत फर्क है। If you have some good qualities, God will give you some good things. अगर आपके अंदर अच्छी खसूसियात मौजूद हैं तो आपको खुदा बरकतें भी अच्छी ही देगा। But it will depend upon your mind. और ये सब कुछ आपके ज़हनी तसव्वुर पर मुनहसर है। Your mind is a solution of everything. और आपका ज़हन, आपका दिमाग जो है हर चीज का उसमें हल मौजूद है। The solution of growth and the solution of dawn. और आपके पास नशोनुमा पाने का भी आपके अंदर मौजूद है टैलेंट, और नशोनुमा ना पाने या गिर जाने का भी आपके अंदर टैलेंट मौजूद है। Just you need to use your thinking level. इसका मतलब ये है कि अपनी सोच को मुस्बत बनाइए। My dear brothers and sisters, the first person have a 5 and the second have a 2. मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, पहले को 5 मिलते हैं, दूसरे को 2, And the number third have a 1. और तीसरा जो है उसको सिर्फ 1 तोड़ा मिलता है। You will answer this question. आप इस बात का जवाब दें, इस सवाल का। The first and the second person, they go and they make a business. और ये जो पहला और दूसरा शख्स है जिसको 5 और 2 तोड़े मिलते हैं,
वो जाते हैं और इससे कारोबार करते हैं And the double profit, double income. और उससे वो जितने उनके पास होते हैं उससे जितने और कमा लेते हैं। Okay, and the number third, have a fear in his life. और जो तीसरा होता है उसकी जिंदगी में डर मौजूद है I cannot do anything. कि उसको ये डर है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। He have a talent and he have a income, but he think in his mind, I can't do anything. उसके पास अहलियत मौजूद है लेकिन वो उसको ब्रुए कार नहीं लाता और वो सोच उसकी घटिया है, मनफी सोच है उसकी कि मैं कुछ कर नहीं सकता। It means the first two are the positive and the last one is a negative. इसका मकसद है कि जो पहला और दूसरा है वो मुस्बत सोच का हामिल है लेकिन तीसरा जो है वो मनफी सोच का हामिल है। What is a living fish and what is a dead fish? Both parties. Any person can be tell? यही है कि जिंदा मछली और मुर्दा मछली की मिसाल। It means the first two have a desire to do something in their life and the last one have a not anything, just negative thinking. पहला और दूसरा उस के अंदर ये जज्बा होता है कि वो कुछ ना कुछ कर गुजरे लेकिन तीसरा जो है वो उसकी सोच मनफी रह जाती है और वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ हासिल नहीं कर पाता। It means his mind is a paralyzed mind. इसका मतलब ये है कि उसका जो ज़हन है वो मफलूज है। In this world, my dear brothers and sisters, many people have a paralyzed mind. और मेरे अजीजों इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो ज़हनी तौर पर मफलूज हैं। It means the paralyzed mind, you can be say their focus, they have not focused on their goal. जो मफलूज जहन के हामिल लोग हैं इसका मतलब ये है कि उनका अपनी रोया की तरफ ध्यान नहीं है। It means they says I cannot do anything. और ये उनकी सोच होती है कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो धरे के धरे रह जाते। Their focus did not work. और उनका जो तवज्जो है वो भी अपने काम की तरफ मबजूल नहीं होती। But my dear brothers and sisters, the Bible says, मेरे प्यारे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बताता हूँ Bible says the Philippians 4:13, I can do everything who give me strength. फिलिपियों के खत उसके 4:13. चौथे बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ Who give me strength? जो मुझे ताकत बख्शता है। इस आयत को प्लीज जरा पढ़ दें। The Philippians 4:13. फिलिपियों 4 बाब Chapter चौथा बाब 13 आयत। verse और 13वीं आयत मुकद्दसा। जल्दी से जो भाई या बहन निकाले वो ऊंची आवाज में बावाज़े बुलंद पढ़ दे। फिलिपियों का खत 4 चौथा बाब 13वीं आयत मुकद्दसा। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। It means we have not our own power. इसका मतलब है कि हमारी अपनी जाती ताकत नहीं है And God give us a power. और खुदा हमें ताकत बख्शता है And with the power of God, और खुदा की ताकत से we can say, I can do all हम things. ये कह सकते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। Just you need to change
और की गल ये सौंगे हो सरकार जी बड़ी नहीं सौंगे हवाले भी बड़ी जल्दी कर दे Just we need to change our thinking level. हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है God give you the strength of doing something. और God give us the power to doing something. खुदा हमें ताकत बख्शता है कि हम कुछ ना कुछ कर गुजरें My dear brother sister, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों if we have a rented home, rented home, अगर हम किराए के घर में रहते हैं have sometimes we think in our mind we can buy a new home. तो हमें सोच रखनी चाहिए कि हम अपना घर खरीदेंगे If our home is not a good condition, अगर हमारा घर जो है अच्छी कंडीशन में नहीं है you can set your target, you can set your goal. Through the power of God we can do something. Then God create a resources for you. अगर आपकी सोच खुदा में ये है कि हम उस घर को अच्छा करना चाहते हैं अच्छा बनाना चाहते हैं अगर हम किराए में हैं तो हम अपना घर खरीदेंगे अगर हम छोटे या मुख्तसर घर में हैं तो हम इसको बड़ा करेंगे आप सोचें और खुदा आपको ताकत मुहैया करेगा इस बात Then God give you the resources around you of doing something new and better. आपको आमदनी के जराए भी खुदा मुहैया करने वाले हैं लेकिन आप अपनी सोच को बदलें Just negative words, don't use negative words. I can do anything. It means that you are attracting difficult things. आपके जबान पर मनफी सोच नहीं आनी चाहिए मनफी ख्यालात आपकी जबान पर नहीं आने चाहिए कि मैं ये कर नहीं सकता ये कैसे मुमकिन हो सकता है It means you are inviting the difficulties. When you say I can do anything, it means you are calling the difficulties and the negative things. मेरे अजीजों अगर हम अपनी सोच को मनफी रखते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता तो हम मुश्किलात को दावत दे रहे हैं मुश्किलात को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं It means God, the many rich people around us, you can see. The many poor people. बहुत से अमीर लोग आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे The many people are poor around you. और बहुत से जो है लोग वो गरीब भी देखते होंगे And some people are the religious and the good religious man, good spiritual person. और कुछ लोग आपको मजहबी लोग आप देखते होंगे और कुछ गैर मजहबी लोग It means why? What is the difference? What is the problem? ये क्या मकसद है क्या मतलब है इसका इसका क्या मसला क्या है Where is the blockages? Where is main blockages? कहाँ पे रुकावट है ये हमको देखने की जरूरत है कि रुकावट कहाँ For example, here's one water tank on our roof. मिसाल के तौर पर हमारे मकान की छत पर एक टैंकी मौजूद है पानी की The water supply all around the home. और वाटर सप्लाई जो है वो हमने कनेक्शन वाटर सप्लाई का पूरे घर में दे रखा है The connection supply in the washroom, the kitchen, and other things you can be seen and the good supply. और आपने किचन में आपने वॉशरूम में या कपड़े धोने वाली जगह में आपने उस कनेक्शन को मुरतब किया हुआ है ऊपर टैंकी मौजूद है टैंकी के साथ अटैचमेंट है And the some blocks you can one day you go to your kitchen and say your kitchen blocks is water supply is not good. मेरी अजीजों आप एक दिन देखते हैं कि आपके किचन
में पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई रुकावट आ गई है। The other home, all house have a full and a good supply, but problem of supply in kitchen. लेकिन पूरे घर में पानी मतवातर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, बाकी जो टूटियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन किचन की टूटी क्यों बंद है? Where is the fault? Fault in the tank or fault in the tap? कहीं ना कहीं वहाँ पर वो कोई कमी तो रह गई है या कोई कुताही है कहीं ना कहीं, या टैंकी में या I mean to say the tank supply is a good problem in tap, in kitchen. क्योंकि टैंकी में तो पानी आ रहा है टैंकी से, क्योंकि बाकी जगहों में भी आ रहा है, लेकिन किचन की जो नल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ कहीं रुकावट है। You will find out the blockages in kitchen. आप किचन की नाली में देखेंगे या किचन की टूटी में देखेंगे कि कहाँ पे वो ब्लॉकेज है। Then you will remove the blockages and the water supply will be good. Flow of water will be good. आप उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करेंगे या प्लम्बर को बुलाकर उससे वो टैंकी का जो वॉल है, सॉरी उस टूटी का वॉल है उसको चेंज करवाएंगे या टूटी चेंज करवाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे जिससे पानी का बहाव जारी हो जाए। Same as my dear brother and sister. इसी तरह मेरे अजीज बहनों और भाइयों, The tank that comes from God, the tank from God is a good, but if our system is not good, it means we see to the blockages, remove the blockages. From the upper, the flow from the God is a good, but blockages in our life, we will see the blockages. मेरे अजीजों, खुदावन की बरकतें रहमतें जो हैं वो नेमतें जारी और सारी हैं, और अगर वो हम तक नहीं पहुंच रही तो कहीं रुकावट है, और इस रुकावट को दूर करना हमारा कुली फर्ज है। The mostly people looking on the God is not listening my prayer. Flow is a good, but problem in blockages. मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं जो ये कहते हमें सुनाई देंगे कि खुदा हमारी तरफ मतवज्जा नहीं है, खुदा हमारी सुन नहीं रहा। हकीकत ये है कि खुदा सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। We find the blockages in our life. Where is the blockages in our life? और हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में कहाँ पर मुश्किल मौजूद है, कहाँ पर ब्लॉकेज मौजूद है, ठहराव कहाँ पे है, रुकावट कहाँ है। You need to be understand your power. हमें जरूरत है कि आप अपनी अहमियत को जानें। The many people in this world did not know their power that God have give you. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी कुदरत को नहीं जानते, अपनी ताकत को नहीं समझते। They are visionless, my dear brother and sister. वो लोग रोया के बगैर लोग हैं। Okay, the visionless people like the dead fish. The full of vision is a living fish. और ये जो रोया के बगैर लोग हैं वो ऐसे ही हैं जैसे मुर्दा मछली। But dear, the Bible says, I'm not saying, Bible says, at which person who have not a vision will be perished. मेरे अजीजों, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कहता है कि जो लोग बेरोया हैं वो मुर्दा है। Have you any goal that you set we will achieve in 2024? Any person have a set goal? कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने 2024 में इस बात का तयन कर रखा है कि हमने 2025 में ये चीज़ों इन चीज़ों को हासिल करना है?
शो योर हैंड, अपने हाथ दिखाएं कि आपने 2025 में कुछ ना कुछ मुकर्रर कर रखा है कि आपने 2025 में लेना है। Excellent. Give big hand for yourself. अपने आप के लिए भरपूर तालियां लगाएं जिन्होंने ये मुकर्रर कर रखा। Okay. और मैंने भी मुकर्रर किया है कि 2025 में मैंने रिटायर होना है। Hallelujah. अपने घर में जरूर। I tell you one trick. By God, you will achieve your target. I give you one trick. मैं आपके लिए ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने टारगेट को जरूर हासिल करेंगे। I give you just one trick. सिर्फ मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। Please give me the one pen and a pencil. मेहरबानी से मुझे एक लिखने का कलम और कुछ I need a one paper. मैं एक कागज भी लेना चाहता हूँ। For example, I need a one person that tell me life target, life goal. Any one person come here. आप में से कोई भी यहाँ पे आए और अपना जो टारगेट आपने मुहैया किया है, मुंतखब किया है, आप बताएं। जी। It is a very important and a very best trick. This trick from the Bible, not from mine. ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक होगा, ये मेरी तरफ से नहीं। जी, brother, please let me know your one goal of your life. मेरी तरफ से सबको नया साल मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी अपनी नई ख्वाहिशों को, अपनी अपनी नई सोचों को रखें और खुदा पर उम्मीद रखें कि खुदा हम सबको नई ज़िंदगी और नई सोचें दें। मेरी सोच है कि मैं खुदावंद के लिए भी काम करूं और अपने पुराने कामों को छोड़ूं और घरेलू ख्वाहिश है मेरी कि खुदावंद हमें नई गाड़ी दे हालेलुया। और हमारे बच्चों को तरक्की बख्शे और दुनिया के तमाम काम छोड़कर हम खुदा की खिदमत करें। Amen. Okay. पहले ये भाई जो हैं वो किराए की गाड़ी चलाते हैं और उससे अपनी रोज़ की रोटी कमाते हैं और 2025 में ये चाहते हैं कि अपनी नई गाड़ी, अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदें और साथ में अपने जीवन को भी, अपनी ज़िंदगी को भी नया बनाना चाहते हैं। नई गाड़ी तो एक तरफ जो मुझे जिसने पंच किया है, जिसने मुझे थोड़ा सा अच्छा फील कराया है, वो ये है कि ये भाई अपने पुराने कामों को छोड़कर नई जिंदगी अपनाना चाहते हैं। इसके लिए भरपूर तालियां। I write down just two things. The first target 2025. God bless me with a new car. And the number second, new life. Okay, what do you do? Please take it. Hallelujah. Where you every day visit in your home. For example, your mirror. For example, your bed. For example, your home wall. You take this paper. भाई कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका ध्यान रोजाना जाए, वो शीशा भी हो सकता है या दरवाज़ा भी हो सकता है या कोई दीवार हो सकती है, वहाँ पर ये आप लिख कर लगा दें। ये कागज टेप के साथ वहाँ पर चिपका दें आप। Okay, the next thing what you do? Next. और यहाँ पर दूसरा काम आपने क्या करना? Okay, brother, go and see. In 2025, I ask God, give me one car, and the number second, new life. Next, the one रोजाना car.
आपको ये करना है कि आपने इसके सामने जाना है और खुदा से वादे को दोहराना है कि आपने एक कार खरीदनी है और नई जिंदगी को अपनाना है। Next, in his mind, see, I am driving a 0-meter new car. Very wonderful. I'm going with my family. Just in mind, driving. अपने जहन में सोचें और आंखों को बंद करके जहन को इस तरफ लगा लें कि आप एक न्यू कार में, अपनी कार में बैठे हुए हैं और आपकी फैमिली साथ बैठी है और आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। Okay, this trick Jesus give us. Okay, Jesus says, what you ask, feel in your mind that you have received. Bible says. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो तुम मांगो वो अपने जहन में ये सोचो कि वो तुमको मिल गया, तो वो मिल जाएगा। Thinking means you are practice every day. I am driving car. Next new life. सोच का मतलब ये है कि आप रोजाना इसकी प्रैक्टिस करें, रोजाना इसको अपने माइंड में लाएं, रोजाना इसको सोचें कि आपके पास नई गाड़ी है, आपकी जिंदगी जो है वो न्यू लाइफ हो गई। And the new life, oh, bad work, bad activities gone, and the new creation, new life. Mean to say, brother is sitting in home and thinking in his mind, new life. I am sitting in church, I'm praying for people. Sitting home in mind, prayer for people. मेरे अज़ीज़ों, नई जिंदगी का मतलब ये है कि पुरानी इंसानियत को छोड़कर, गुनाहों को छोड़कर नई नेकियों की तरफ राग़ब हो जाना और ये सोचना कि मैं चर्च रोजाना जाऊंगा और खुदा के लोगों के साथ मिलकर दुआ करूंगा और लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। अपने For example, brother cannot preach. Okay, for example, brother cannot preach the word of God, and he can preach in his mind, no problem. मेरे अजीजों, मिसाल के तौर पर ये नई मनादी नहीं कर रहा, लेकिन ये अपने अंदर सोचे कि मैं मनादी कर रहा हूँ। Okay, he can think in his mind, my family, I am, my relatives have a new life. Thanks God. Just in thinking is a solution of everything. आप अपनी सोच को बड़ा बना लें और सोचें कि आप और आपका खानदान नई जिंदगी अख्तियार किए हुए हैं और नई सोच रखे। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, anything what you want, just write on the paper, put on your room and visit every day, see every day. God will bless you and success you in your target, in your life mission. आपने जो कुछ सोच रखा है उसको एक कागज पर लिखें और अपने कमरे में नुमायां जगह पर लगा दें और रोजाना उसको देखें और आंखें बंद करके उसमें खो जाएं थोड़ी देर। Because God will see you, God will observe you. You have to do this, then God will give you. और अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपको ऐसा ही बरकत दे देगा क्योंकि आपने एक तहैया कर लिया है। Because you are attracting, you are calling these things will be happen for you. क्योंकि आपकी तवज्जो का मरकज वही कागज हो जाएगा, उस पर लिखी हुई तहरीर हो जाएगी और खुदा आपको वो मुहैया कर देगा। My dear brother sister, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, when you will go to my home, जब कभी आप मेरे घर में जाएं, in my wall I create my vision board. और अगर आप हमारे घर में जाएंगे तो आपको नुमायां जगह पर मेरा जो रोया वाला बोर्ड है वो आपको नजर आएगा।
Okay, I will do in 2024. I will do this thing, and the 25 I will do this thing, and 26 this thing, like that. Continue. Step by step, I write everything. सर के कहने का मकसद ये है कि मैंने 2024 से लेकर 2040 तक के जो टारगेट्स हैं कि 2024 में ये करना है, 2025 में ये करना है, 2026 में ये करना है, 27 में ये करना है, 28 में ये करना है, 40 में ये करना है। The step by step you can do, then God will help you and you will achieve your life targets and goals. मेरे अजीजों, जो भी इंसान है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं। जो इसका इरादा रखते हैं वो बढ़ जाते हैं। और किसी ने इंग्लिश का माकूला है, स्लो एंड स्टडीली wins the race. My dear brother and sister, your life is very important. मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में क्या ख्वाहिशात हैं? You are very precious people. If you are very important people. और आप बहुत ही खुदा के चुने हुए लोग हैं। आप खुदा के पसंदीदा और बहुत ही कीमती इंसान हैं खुदा के नजदीक। Slavery is not part of our life. जो है नौकरी या दूसरा जो है गुलामी जो है वो हमारा मुकद्दर नहीं है। We belong to Prince. Jesus Christ is a Prince of Peace, and we belong to Jesus Christ. And Jesus is a King. You are Prince and a Princess. मेरे अजीजों, क्योंकि मसीह खुदा सलामती का शहजादा है और हम उससे ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हम भी शहजादे और शहजादियाँ हैं। My dear brother and sister, I tell you the little example of one person. मैं एक शख्स की छोटी सी एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे अजीजों। He was a very poor poor person. वो बहुत ही गरीब इंसान था। And he worked with the masons. वो जो मिस्त्री हैं उनके साथ काम करता था। And one day he is with the arm, okay, and putting some concrete like that. Concrete. You वो understand? बजरी को कूट रहा था, वो हथौड़े के साथ। And his friend and he was sitting same position. Repeat. Same position. They were sitting in the same position like that. See, same position, same that. वो Same position. एक ही जगह पे बैठा था। And by chance, the one aeroplane fly upside. और एक जहाज जो है उसके ऊपर से गुजरा। And he asked to his friend, the one day I will buy this plane. और उसने कहा, उसने अपने दिल में सोचा कि एक दिन मैं इस जहाज को खरीद लूंगा। The friend joking, you are sitting here working with the masons, your income is 1,000 PKR, for example. Who can be possible? वहाँ पे एक और शख्स भी बैठा था, उसका साथी था, वो भी बजरी ही कूट रहा था। वो कहने लगा, ओ केड़े खापां च रोया फिरना है, बजरी कुट्टन दिया है ते खाब वेखण दिया दी जहाज खरीदण दे, ये किस तरह हो सकता है? Okay, so that one day, my dear brother sister, लेकिन एक दिन मेरे प्यारे बहनों और भाई, because his target, his plan, his goal, I will buy plane. So one day God bless him with plane, aeroplane. क्योंकि उसका जो मुद्दा था वो था जहाज खरीदने का, तो वो एक दिन
उसको खुदा ने जहाज खरीदने की अहलियत दे दी। Because he was with her wife in the plane, same position he fly this plane, same position. Okay, he fly over there. Okay, they were sitting at, for example, okay, they were sitting here. Okay, the plane fly here, and the same after few years, he was with his wife in the plane, and the same thing and the same place fly, and this person crying and weeping. हाँ, वो उस जहाज में बैठा, उसकी बीवी उसके साथ उसके जहाज में बैठी है जो उसने खरीदा है, और जहाँ पे उसने सोचा था उसी जगह से वो जहाज जो है गुजरा। उस वक्त वो भाई जो है वो रो पड़ा। The wife asking, "Why are you weeping?" बीवी ने उससे पूछा, आप रोए क्यों हैं? The person asked, "The same place we were sitting, and I asked to my friend, I will buy. But no, he is not here. He is died. If he will be there, it will be great for me." मेरे अजीजों, उसने कहा ये उस वक्त की बात है जब मैं जिस जगह से ये गुजरा हूँ, इसी जगह पे नीचे बैठा था, बजरी कूट रहा था, मेरे साथ एक साथी भी बैठा था, और मैंने ये सोचा था, अपने आप से कहा था कि मैं एक दिन जहाज को खरीदूंगा, और मैंने खरीद लिया। लेकिन वो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। काश के वो भी देखता तो वो कितना अचंबा होता उसको कि मैंने जहाज खरीद लिया। It's mean, my dear brother and sister, God can do everything. You are not dead fish, you are living fish, and you can do everything in the world. Nothing is difficult, everything is possible. मेरे अजीजों, आप कोई मुर्दा मछली नहीं है, आप जिंदा मछली हैं, और आप खुदा में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप खुदा के अच्छे लोग हो, प्यारे लोग हो। आपको खुदा बरकत पर बरकत देना चाहता है, और आप जो सोचेंगे वो कर गुजरेंगे अगर खुदा में आप रहते हुए इस बात को। Just we need to change our mindset, my dear brother. सिर्फ और सिर्फ अपने जहन को तब्दील कीजिए I can do everything कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ in Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम। Amen. Hallelujah.